روزانہ ایسے اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان یمن کا رہنے والا تھا، مشرک تھا اور بہت غریب بھی تھا۔ اس کی زندگی کا ساز و سامان صرف بدن ڈھانپنے کے کپڑے تھے۔ دن کا وقت درختوں کے سائے میں بتا لیتا اور رات ہوتی تو کسی پتھر کی اوٹ میں جا کر رات بسر کر لیتا۔ اس نوجوان تک خبر پہنچی کہ عرب میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ اس کے دل میں شوق پیدا ہوا۔ نوجوان تھا، جسم میں طاقت تھی، چنانچہ پیدل ہی سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و شہادت میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ زمین کی صف میں شامل ہو گیا۔ نبی اکرم نور مدثر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل صوفہ میں شامل فرمایا۔ مسجد نبوی شریف میں ایک چبوترا تھا جسے صوفہ کہتے ہیں۔ دور دراز سے ہجرت کر کے آنے والے غریب صحابہ اکرام علیہ رضوان اس چبوترے پہ رہتے اور دن رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین سیکھتے اور فکر میں مشغول رہا کرتے۔ چنانچہ یہ یمنی صحابی بھی اہل صوفہ کے ساتھ مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہ کر علم دین سیکھا کرتے تھے۔ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے قرآن کریم کی مکمل 4 سورتیں سیکھ لی۔ ایک دن یہ حاضر دربار ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نکاح کروا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن کریم کی 4 سورتیں یاد ہیں اور آپ ہی کا ارشاد ہے کہ قرآن مل جائے تو کوئی فاقہ نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، تم نے سچ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبیلہ بنو سلمہ کے ساتھ ایک گھر نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ وہاں پہنچتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لڑکی کے والد تک پیغام پہنچایا۔ لڑکی کے والد بھی صحابی پہ لہٰذا پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر فوراً کہا، میں نے سنا اور اطاعت کی۔ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اور اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اس یمنی صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے والد کو رخصتی کی تیاری کی۔ حکم دیا کہ حکم و فوراً عمل کیا گیا۔ رات ہوئی، وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کمرے میں آئے، دیکھا خوبصورت قالین بچھا ہوا ہے، بہترین بستر لگا ہوا ہے، چراغ روشن ہے۔ یہ دیکھ کر انہیں ماضی کی یاد آ گئی۔ قالین دیکھا تو خیال آیا، ایک وقت تھا جب میں زمین پر درختوں کے سائے میں زندگی گزارتا تھا۔
खूबसूरत बिस्तर देखकर पत्थरों पर रात गुजारने वाला याद आ गया। चिराग देखा तो याद आया, मैंने तो बगैर चिराग के ही ज़िंदगी गुजारी है। कुछ देर के लिए यूं ही खड़े अपना हाल और मांझी सोचते रहें। फिर कमरे के कोने में गए, अल्लाह अकबर कहा और नमाज शुरू कर दी। 2 रकात नमाज अता करके अल्लाह पाक का शुक्र अता किया, मगर अभी दिल नहीं भरा। फिर खड़े हुए, फिर 2 रकात नमाज अता की, अल्लाह पाक का शुक्र अता किया, अभी भी दिल नहीं भरा। 2 रकात मज़ीद और अता की, फिर अल्लाह पाक की हम्द सना की, शुक्र अता किया, फिर भी दिल नहीं भरा। तो फिर खड़े हुए 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह पाक का शुक्र अता किया। यूं ही 2-2 रकात पढ़ते रहें, अल्लाह पाक का शुक्र अता करते रहें, यहाँ तक कि पूरी रात गुजर गई। सुबह हुई, नमाज फ़जर के लिए मस्जिद में हाजिर हुए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में बाजमात नमाज फ़जर अता की। रोज़ाना मस्जिद में ही रहा करते थे। आज भी फ़जर नमाज पढ़ के मस्जिद में ही बैठ गए, इल्मे दीन सीखते रहें। फ़जर में ज़ोर ज़ोर से असर, असर से मगरिब और मगरिब से ईसा तक मस्जिद ही में रहें। 5 नमाज वो जमात अता की। ईसा के बाद घर वापस आएँ। जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, सामने वही काली उसी तरह बिस्तर लगी हुई, चिराग जल रहा था। अब भी फिर मांझी की याद आ गई। आज भी कमरे के एक कोने में गए, 2 रकात नमाज अता की, अल्लाह पाक का शुक्र अता किया। इतने शुक्र से दिल नहीं भरा तो रकात मज़ीद पढ़ी। यूं ही नमाज पढ़ते गए, शुक्र अता करते रहें। करते करते आज भी पूरी रात यूं ही गुजर गई। फ़जर में ज़ोर ज़ोर से असर, असर से मगरिब और मगरिब से ईसा तक मस्जिद ही में रहें। 5 नमाज व जमात अता की। ईसा के बाद वो घर आए। जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, सामने वही काली उसी तरह बिस्तर लगा हुआ, चिराग जल रहा था। अब फिर मांझी की याद आ गई। फिर भी कमरे में एक कोने में गए और 2 रकात नमाज अता की, अल्लाह पाक का शुक्र अता किया। इतने शुक्र कि दिल नहीं भरा। 2 रकात नमाज पढ़ी। यूं ही नमाज पढ़ते पढ़ते, शुक्र अता करते करते आज भी पूरी रात गुजर गई। अगली सुबह फिर मस्जिद में हाजिर हुए, 5 नमाज व जमात अता की। रात को घर आए। फिर वो कैफियत 3 रातें इसी तरह शुक्र अता करते ही गुजर गई। चौथे दिन लड़की के वालिद अपनी बेटी को मिलने तशरीफ़ लाएं। अगली सुबह फिर मस्जिद में हाजिर हुए, 5 नमाज व जमात अता की। रात को घर आए। फिर वही कैफियत 3 रातें इसी तरह शुक्र अता करते ही गुजर गई। चौथे दिन लड़की के वालिद अपनी बेटी को मिलने तशरीफ़ लाएं। बेटी का हाल पूछा तो बेटी ने बताया कि मेरे शौहर रात को आते हैं, कमरे के कोने में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह पाक का शुक्र अता करते हैं और सारी रात गुजार देते हैं। वालिद साहब ने बात सुनी तो बार गाए रिलासत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और सारी बात अर्ज की। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमनी सहाबी को बुलाकर पूछा, तुम्हें किस चीज़ ने मेरी रोज़ा से दूर रखा हुआ है? अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुशरिक था, यमन में रहता था, मेरा अपना कोई ठिकाना नहीं था, पत्थरों पर रात बसर करता था, दिन में दरख्तों के साये में पनाह लेता था। फिर अल्लाह पाक ने करम किया, मुझे इस्लाम की दौलत नसीब
फरमाई, मुझे कुरान करीम की 4 सूरतें सीखने की शहादत नसीब हुई। अल्लाह पाक ने कुरान करीम की बरकत से मेरा सीना रोशन फरमाया। जब मैं अपनी रोज़ा के कमरे में जाता तो वहाँ पीछे खूबसूरत कालीन, बेहतरीन बिस्तर और चिराग वगैरह देखकर मुझे अपनी माधवी की याद आ जाती है। फिर मैं कुरान करीम की इन 4 सूरतों में से एक को पढ़ता और इसमें गौर करता हूँ तो मुझे किसी चीज़ में रुकावट नहीं होती और अल्लाह पाक का शुक्र अता करने में मसरूफ़ हो जाता हूँ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो कौन सी सूरत है? उस पर उन सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान करीम की तिलावत शुरू की। तर्जुमा, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज़्यादा तबली ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुँह देखा। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु उस सूरह की तिलावत कर रहे थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वहाँ मौजूद सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह अलैहि अजमाइन सुन रहे थे। वो सहाबी खुद भी रो रहे थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखों से भी आंसू जारी थे और वहाँ मौजूद सहाबा इकराम भी रो रहे थे। यमनी सहाबी ने सूरह तक आसूर्ब पूरी पढ़ी, फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ फरमाइए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ फरमाई, या अल्लाह इसकी बहुत मग़फ़िरत फरमा, इसे थोड़े पर शुक्र करने वाला बना और इस अपनी रहमत में माला माल फरमा। इस वाक़ये को 1 हफ़्ता ही गुजरा था कि बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नौजवान सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु दुनिया से रुखसत हो गए हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ा और फरमाया, तजवीज़ व तक़सीम से फारिग होकर मुझे ख़बर दो। जब जनाजा तैयार हुआ तो बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ की गई, आप तशरीफ़ लाएँ। नमाज जनाजा पढ़ाई और उस सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु को मुखाबित करके फ़रमाया, ऐ नौजवान,